नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। और प्रदीप नामग्याल जी और मैं हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम, शलोम। और चाइनीज में निहाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jambo for our viewers from East Africa, South Africa and the continent of Africa, wherever they speak Swahili. absolutely, absolutely. All of you must learn Swahili. Let's be very clear. And it should be part of the Indian curriculum. Swahili should be a compulsory language in all schools. That's my Mass that's my following belief. out there, people who speak Swahili. That's right. Watch our shows and Absolutely. respond very well. So after this now, whatever I speak, Pradeep ji will translate into Swahili. Swahili. That'll be wonderful. So Pradeep ji, congratulations. Mr. Modi is now Prime Minister designate for the third time. Yes. And on the 9th, which is Sunday, Mr. Modi will take oath of office at 6 p.m. at Rashtrapati Bhavan and will be administered the oath of office by the President, Madam Draupadi Murmu, and he would have equaled Jawaharlal Nehru's record. Isn't that wonderful? Wonderful, Fantastic. sir. Excellent. I mean, if you see, the BJP believes, and most part of the people in this country believe that Article 370, Ram Bundle, Triple Talaq, the fifth biggest economy, digital revolution, I mean, these are all things that, koi achieve nahi kar paya. Independent India, any Prime Minister in independent India has not achieved this kind of things. Feats that Prime Minister Modi has achieved. So they believe that he deserves Modi 3.0. 3.0. 3.0, 3.0, Wonderful. 3.0, 3.0. I mean, you look at they still believe that the mandate is for BJP, the mandate is for NDA. People have voted the NDA But to it is power. for NDA, whether you like it or Yes. not, it is. I mean, the BJP is still the single largest party at बिल्कुल सर। 240, 240, याद रख लीजिए, नरसिम्हा राव जी की भी 232 आई थी। 240 सीटें जो हैं इस देश में 90 के दशक के बाद यानी 80s के दशक के बाद आज तक किसी की नहीं आई। बिल्कुल सर। Let's be very clear. Yes, सिर्फ yes, बीजेपी की yes. आई हैं। So let's not kid ourselves. It is true. India Alliance has done very well. There is no doubt. कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा छू लिया है तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। राहुल गांधी जी इटली नहीं भाग रहे हैं, कोई और कहीं नहीं भाग रहा है। That was just electoral rhetoric. इलेक्शन के दौरान आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन मोदी has achieved the impossible, what looked like the impossible. प्रदीप जी क्या है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार। And in many places, the state and the center both double incumbency. That's right. Look at Odisha. They've Yes. won the state for the first time. Exactly. BJP is in a majority in Odisha. जबरदस्त बिल्कुल। And to retain Karnataka, in spite of two heavyweights there. I mean, you got two heavyweights, you can't really downplay the strength of D.K. Shivakumar and Siddaramaiah. Yes, right. They both are probably the strongest leaders Congress has in every state. In fact, they might be funding the entire Congress campaign. The capacity is there. And the will of theirs, and they've got the determination and the temperament to do it. In spite of that, BJP manages to retain Karnataka to a certain level. It speaks volumes on Mr. Modi. I mean, it's not that people have voted, they voted for Prime Minister Modi. They want him out there as a That's Prime right. Minister. But as the India Alliance would say, it was not a level playing field. They were being attacked by the Enforcement Directorate, by the Income Tax and by the CBI and so on and so forth. Of course, we'll talk about that, and which, by the way, is not untrue. Let's be That very has been clear. happening since decades. When I remember when I was a small kid, I used to read the newspapers, Indira Gandhi misusing enforcement agencies, CBI. But that was only during the emergency, sir, not after that. I think even उसके when बाद Girilal Jain उसके was- बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। Yes, the Pradeep Times ji- of India person was. ठीक है साहब, लेकिन Yes. उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। Let's be very clear. I hope there will be something rational with regard to these enforcement agencies. What Mr. Modi had promised in 2013-14 before he became Prime Minister, he had said कि अब CBI का डर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ईडी का नाम नहीं लिया था, मानते हैं।
तो he's let the ED lose. हाँ तो with more powers. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डर रहेगा, सीबीआई का नहीं रहेगा। डर, और इतना भयंकर डर, और उनको सिर्फ 2 हाथ नहीं 50 हाथ दे दिए। कहने का मतलब हर ये हुआ। चीज जहां कोई जा नहीं सकता वहां ईडी पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रदीप जी एक चीज है, आज की तारीख में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं और यूपी में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा सीटें लेकर के आई हैं वेस्ट बंगाल में, और तो और छोड़िए राजस्थान में भी इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, और महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ है उसके बाद, जैसा कि हम लोगों की बात हुई है, मेरी खुद की बात हुई है अलग अलग कांग्रेसियों से, अलग अलग ऑपोजिशन के लोगों से, उनका भैया आप तो ईडी भेज दो, आईटी भेज दो, जिस मर्जी को भेज दो, कब तक डराओगे किसी को? The moral of the story is किसको the people who टांगोगे? stood and fought back have succeeded. That's right. The people who stood firm, looked at his face and fought back. That's right. They all scored except Kejriwal. Kejriwal बेचारा बहुत लड़े थे. But that is Delhi. सर वो दिल्ली है। दिल्ली किस तरफ जाएगी? Yes, yes. प्रदीप जी दिल्ली किस तरफ जाएगी किसी को मालूम नहीं है। दिल्ली का दिल कहाँ है? सीधी बात है। Delhi respects only power, and they saw Mr. Narendra Modi, and More that's powerful. it. Khatam. Don't look left or right. Mr. Modi in the Lok Sabha, Mr. Kejriwal in the Assembly. That's it. Now let's go straight across to Mr. Vinayak Ambekar of the Bharatiya Janata Party. He is with us right now. तो विनायक अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव सर। अरे हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार एनडीए सरकार। चलिए आजकल मोदी सरकार नहीं बोल रहा कोई, क्योंकि मोदी सरकार नहीं है, 240 सीटें हैं आपकी, तो लिहाजा अभी एनडीए सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड अब इक्वल कर लिया है। तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में 9 तारीख को 6 बजे। विनायक अंबेकर साहब, आप अंदर से भले ही आप जरा डिसअपॉइंटेड हों कि भैया 63 सीटें हमारी कम हो गई, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी है तो मोदी की सरकार। अंबेकर साहब बराबर है, और अंदर से नाराज होने का कोई बात नहीं है। मैं नाराज की बात नहीं कर रहा, मैं डिसअपॉइंटेड की बात कर रहा हूँ। डिसअपॉइंटमेंट होगी थोड़ी सी कि यार उतना जितना एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ साहब, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि हमारी खुद की प्रेडिक्शन थी, मेरा खुद का ये विश्लेषण था कि 305 से 325 तक आएंगी पक्का, वेरी फ्रैंकली। सो ये कैसे हो गया, इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, कहाँ पर बीजेपी से कहाँ गलती हुई उसके बारे में जरा देखेंगे। लेकिन सर जनता जनार्दन जो है वो बादशाह है, उसके आगे सब नतमस्तक है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो विनायक अंबेकर साहब, अब जैसा प्रदीप जी बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी 3.0 यानी थर्ड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी, वो कैसी होने वाली है सर, वो जरा बताएं प्लीज। वो वैसे ही होने वाली है, कुछ ज़्यादा फर्क रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। थोड़ा वर्किंग में डिफरेंशिएट होगा, मगर वो तो मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी हर टाइप के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में बहुत माहिर है जी, बिल्कुल। बहुत जल्दी से वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो अडॉप्ट करके ले लेंगे। आज का जो माहौल था जिसका आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो आपने देखा रहेगा कि ये नीतीश कुमार जी क्या बोले हैं, चंद्रा बाबू क्या बोले हैं, तो मेरे हिसाब से उन लोगों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। भले कोई पॉइंट पर ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मगर नरेंद्र मोदी जी किसी भी आदमी से अडॉप्ट होने में बहुत कम समय लेते हैं, तो वो नए सिचुएशन को अडॉप्ट होने में सबसे कम समय लेंगे और इजीली अडॉप्ट हो जाएंगे। जबरदस्त। प्रदीप जी, मोदी साहब ने कहा, विपक्ष को उन्होंने एक सजेशन दे दिया कि आप राष्ट्रहित के नियत से सदन में आएगा, आप राष्ट्रहित को लेके आएंगे। बिकॉज आज के तारीख में जिस प्रकार से विपक्ष हर चीज के लिए मोदी जी पे आलोचना कर रहे हैं, बोले कि देखो मोदी जी मोदी 3.0 क्यों बोल रहे हैं, अब एनडीए बोलना चाहिए, और एनडीए बोलने लगे हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में एनडीए का नाम ही नहीं लिया था, आज एनडीए के नाम ले रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मोदी जी को जनादेश नहीं है, 60% ऑफ द पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो दिस इज इलीगल ऑक्यूपेशन। तो तरह तरह के बातें कांग्रेस। तो मोदी साहब ने कहा राष्ट्रहित के नियत से आप सदन में आएंगे, ये उम्मीद रखता हूं ना। हाउ डू यू सी द कांग्रेस इज तुरंत पहले दिन से आलोचना करना, कैसे देखते हो आप विनायक अंबेकर साहब? कांग्रेस इज ए गाइडेड पार्टी,
उनका गाइडेंस कहाँ से आता है ये सब लोगों को पता हो गया है। तो वो गाइडेंस के हिसाब से वो चलेंगे, उसमें उनके तरफ से कोई बदलाव आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। खाली इतना ही हुआ है कि उनका जो हर्षोल्लास जो दिखता है उसका कारण ऐसा है कि उनको बहुत डर था कि मोदी जी इस बार भी बहुत बड़े बहुमत में आएंगे और फिर बाद में कांग्रेस के ऊपर जो कब्जा सोनिया जी ने बना के रखा है गए 26 साल में, वो कब्जा उनके हाथ से निकल जाएगा ऐसा उनको डर था। तो वो कब्जा निकल नहीं गया, क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी रहने में उन दोनों का जितना इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट देश की बाहरी ताकतों का और उनकी जो कोटेरी है उनका है। क्योंकि इनको गाइड करने में, आपने जिस विषय में आज का चर्चा रखा है स्टॉक मार्केट स्कैम का, राहुल जी ने बोला कल, तो आपने देखा रहेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बारीकी से। तो जयराम जी रमेश उनको पूरा गाइडेंस दे रहे कि ये पढ़ना है, वो ऐसा करना है, और राहुल जी ने खुद को, उनको कोई उस चीज की ज्यादा मालूमात नहीं थी, तो खाली 3 मिनट में उन्होंने प्रेस का ब्रीफिंग खत्म किया। ये तो काम राहुल जी ने करना नहीं था, मगर उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसा राहुल जी बहुत बड़े बड़े विषय में ज्ञान संज्ञान ले रहे हैं, वो बहुत पंडित हो रहे हैं, बहुत उनको समझ में आ रहा है, ऐसा सब वो बता रहे। तो ये सब थिएट्रिक्स है, इसका कोई, ये थिएट्रिक्स अभी उनकी संख्या बढ़ने से और ज्यादा बढ़ेगा और मोदी विरोध जो है उनका और कट्टर हो जाएगा। मगर मोदी जी जो है, ये मोदी जी सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हाथ में लिया हुआ कर्तव्य पथ जो है उनका, उस पर वो चलते रहेंगे। और मुझे तो आशा है कि ये जो एनडीए के पार्टीज है वो उनको अच्छी तरह से सहकार्य करेंगे। बट अम्बेडकर साहब, नाउ दिस टॉपिक राहुल गांधी जी ने कहा कि एक तो 30,000 करोड़ अमाउंट का स्कैम है, 30 लाख करोड़, 30, यस, एंड उस पे इंक्वायरी होना चाहिए, जेपीसी हैज टू सिट डाउन, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये आरोप है राहुल गांधी जी का। भले आपने कहा 3 मिनट में उसको कुछ मालूम नहीं है, बट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। But people have lost money. Ambedkar sahab, people have lost money. The country deserves an inquiry. I mean, we're not saying that Prime Minister Modi is involved in that. But Rahul Gandhi जी ने एक एक चीज जोड़ के मोदी जी को उसको जोड़ दिया है कि मोदी जी ने ये दिन में ये कहा था, अमित शाह जी ने यही दिन में ये कहा था, और दोनों लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में बात किए थे, मार्केट ऊपर। तो दिस टाइंग अप अ चेन ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। द पॉइंट इज, अगर द अमाउंट इज सो ह्यूज, so don't you think an inquiry is required? Because people have lost money. Somebody has lost money. Huge amounts of money. Ambedkar साहब, आप यदि इसका मतलब नहीं है कि किसी ने मनी लॉस किया, क्योंकि उसके दूसरे दिन हाफ, जो जितना पहले दिन डाउन हुआ था उससे हाफ कवर हुआ, और आज उसके आगे जाके आज निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है। तो ये 2-3 दिन में 7 तारीख तक जो नोशनल लॉस 30 लाख करोड़ का था उससे ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये लॉस नहीं है, कोई पीपल हैव नॉट। विनायक अम्बेडकर साहब, और कोई भी आदमी, मैं खुद दिन भर शेयर ट्रेडिंग करता हूँ 3:30 बजे तक। कोई भी आदमी जब मार्केट गिरता है तो शेयर बेचता नहीं है। तो ये गलत बात है कि 30 लाख करोड़ का किसी को लॉस हुआ। विनायक अम्बेडकर साहब, 2013 और 2014 के कैंपेन में ये कहा गया था कि 2G स्कैम में 1.7 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है। कांग्रेस बोलती रही कि ये नोशनल लॉस है। सीएजी ने 73,000 करोड़, नॉट 1.7 लाख करोड़, 73,000 करोड़ का नोशनल लॉस बताया है। उस वक्त कांग्रेस नोशनल लॉस बोल रही थी, आज आपके मुंह से मैंने सुना है नोशनल लॉस। तो लिहाजा कांग्रेस तो इसको पकड़ के बैठेगी सर। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इन्वेस्ट कीजिए, तो आप ये बताइए, इसको तो कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। विनायक अम्बेडकर साहब, इन्वेस्ट कीजिए ये शब्द किसी के भी मुंह से आया नहीं है। मार्केट तेजी पे जाएगा, ये कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट का। और ये कॉन्फिडेंस कहां से बना, तो जब 2014 में ये शेयर मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो 67 लाख करोड़ रुपीस था, और 2024 में वो 415 लाख करोड़ रुपया था। जो निफ्टी 17,000 पे था वो 14,000 पे था, वो 23,000 के आगे गया।
तो यह एक बताने का तरीका होता है कि हमारे पीरियड में, हमारे कार्यकाल में हमारा जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उसके वजह से जो इंडियन मार्केट्स पे दुनिया का भरोसा बैठा हुआ है, तो वो भरोसे के वजह से ये एम कैप बढ़ा है। अभी आपने जो उदाहरण दिया वो इधर लागू नहीं होता है, इसीलिए लागू नहीं होता है, जो नोशनल लॉस 2G स्कैम में हुआ था वो गवर्नमेंट को एक्चुअली आया बाद में। सर नहीं है, less टू than जी it, टू जी what was recovered was टू only जी around, after the new auction was held, यस what came in was just about 12,300 crores, नो 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 never डेफिनेट 73,000 crores. नो डेफिनेटली नॉट। जो आप जो बोल रहे हैं कि 2G का जी नोशनल लॉस था वो बाद में रिकवर हो गया है, अभी मेरे पास फिगर नहीं है, मैं आपको बाद में कन्वे करूंगा। मगर बाद में जो 2G या 3G के जो सब ऑक्शंस हुए हैं वो जी इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे सीमलेसली हुए हैं और गवर्नमेंट ने कोई लाख करोड़ रुपए उसमें कमाया है। तो ये गवर्नमेंट को आने वाला पैसा गया था, ये ऐसा है, इसका बुक वैल्यू कम हुआ था। बुक वैल्यू कम होना और आने वाला पैसा न आना, इसमें आप फर्क करेंगे क्या नहीं करेंगे? बट अंबेडकर साहब यहाँ पर स्टॉक मार्केट वीक एंड में एक जंप, क्वांटम जंप लेता, अनएक्सपेक्टेड अनरीजनेबल जंप ले रहा है और मंडे ओपनिंग में एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल है, एकदम डाउनफॉल इस तरह से कि अनएक्सपेक्टेड एंड अनरीजनेबल डाउनफॉल। तो क्या इसका इंक्वायरी, आई नो द स्टॉक मार्केट सेबी रेगुलेटर्स देयर, दे विल मॉनिटर, दे विल इन्वेस्टिगेट, बट इफ the volume is so huge and the market capitalization जो आप बोल रहे हैं, market cap value is so huge, then what is the harm in having an inquiry? क्या फर्क पड़ता है? Because retail investors, भले लोगों ने warn किया था, retail investors don't invest or don't go into the stocks at the right time, this is not the right time to go because this seems to be an artificial movement। जो भी expert थे warn किया था, but in spite of that many people have lost money। आप इसको notional, because people retail बेचारे गरीब investors डाले हुए पैसे जिनको शौक है ट्रेडिंग में, बट व्हाट इज द हार्म इन हैविंग एन इंक्वायरी? आई मीन द गवर्नमेंट माइट ऑर्डर एन इंक्वायरी, बट वी नो दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व, वी नो अमित शाह इज नॉट इन्वॉल्व, व्हाई विल दे गेट इन्वॉल्व इन दिस? बट इफ पीपल हैव लॉस्ट मनी, देयर इज नीड टू बी सडन ऊपर जाना, सडन नीचे जाना विद इन वन डे। अंबेडकर साहब, यू हैव बीन इन द स्टॉक मार्केट, इतना चढ़ाव और इतना उतराव विद इन सच अ स्पैन ऑफ टाइम, डिजर्व्स एन इंक्वायरी। अंबेडकर साहब, किसका इंक्वायरी करेंगे आप? क्योंकि शेयर मार्केट में जो सेबी रेगुलेटर है उसने कई उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। कोई भी स्टॉक है तो उसका अपर सर्किट लोअर सर्किट जो लगता है तब वो स्टॉक का ट्रेडिंग बंद हो जाता है। तो जिस स्टॉक में उस स्टॉक के हैसियत के हिसाब से किसी का 20% पे है, किसी का 5% पे है, जो ज़्यादा ट्रेडेड स्टॉक है उसको 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, तो दैट मैकेनिज्म ये सब ऑटोमेटिक है, ये किसी ने मैनिपुलेट करने का कोई सवाल आता नहीं है। तो इंक्वायरी किसका करेंगे? शेयर मार्केट ऑलवेज रन्स ऑन परसेप्शन, और शेयर मार्केट का जो परसेप्शन है वो किसी एक आदमी का नहीं है, वो क्यूमुलेटिव परसेप्शन है। एक आज इंडिया में 18 करोड़ तक 12 करोड़ तक डीमैट अकाउंट होल्डर्स गए हैं, जिसमें बहुत से लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब लोगों का कलेक्टिव विजडम जो रहता है, कलेक्टिव परसेप्शन जो होता है, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट अप या डाउन होता है। अभी आप पहले दिन का इंक्वायरी करना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि 3 तारीख का इंक्वायरी करो, 4000 पॉइंट 4000 सेंसेक्स क्यों बढ़ा, और 4 तारीख का इंक्वायरी करो का 4000 सेंसेक्स नीचे क्यों गया। तो दूसरे दिन 5 और 6 और 7 तारीख को उतना कवर करके सेंसेक्स और आगे गया, तो उसका इंक्वायरी क्या करेंगे? किसका करेंगे आप इंक्वायरी? ना ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा, भले इन्होंने कहा कि वांट्स ऑल द मिनिस्टर्स इंक्वायरी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो एक्स होम मिनिस्टर, सबका इंक्वायरी चाहते हैं। ही टॉक्ड अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जो बाहर के फंडिंग है वो प्रॉफिट बना के यहां से गए, सो दैट नीड्स, व्हाई डिड दे बुक प्रॉफिट्स एंड हाउ डिड दे गो, यानी इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन कि बाहर जो विदेशी लोग किसने प्रॉफिट कमाया इसमें। अरे सर, इंक्वायरी किसका करेंगे? आप ओपन इकोनॉमी में है, आपने सबको एक कनेक्शन दिया है, मैं मेरे ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरी क्या इंक्वायरी होगी? क्या मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, मैंने 3 तारीख को बेचा था, 4 तारीख को मैंने खरीदी किया, तो उसमें आप मेरा इंक्वायरी क्या करेंगे? आई एम एंटाइटल्ड टू डू दैट। ये ओपन इकोनॉमी है,
फ्री ट्रेड है, मेरा राइट है, और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जो होना चाहिए वो सेबी ने सब लगाए हुए है। तो इसमें क्या इंक्वायरी तो करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर का इशारा पे हुआ नहीं, आपका कहना है? 100% हुआ नहीं, प्राइम मिनिस्टर का वो काम ही नहीं है। और यदि लोग प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे काम करते थे तो फिर उन्होंने 4 तारीख को क्यों बेचा? बहुत लोग हैं मेरे पहचान के जिन्होंने 3 तारीख को जब मार्केट बहुत हाई हुआ था तभी बेच के भरपूर नफा कमाया है। अभी ये इंडिविजुअल डिसीजन है। और आपने कभी भी कोई भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग का एडवाइस करने वाले जो चैनल है, दो जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज हिंदी के चैनल है, आपने कभी भी उनको सुना तो वो सब लोग वार्न कर रहे थे कि वोलेटिलिटी और विक्स इंडेक्स करके एक शेयर मार्केट का इंडेक्स रहता है, तो विक्स इंडेक्स ये जब 1 तारीख से बहुत हाई हुआ था तो सब जो एडवाइजर्स थे वो अपने क्लाइंट लोगों को बोल रहे थे कि ये वोलेटाइल मार्केट में कोई भी रिस्क मत लेना और 3-4 दिन मार्केट से दूर रहना। तो बहुत से मेरे हिसाब से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो मार्केट से दूर हुए थे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि जो स्मॉल, आप बोल रहे हैं कि गरीब लोगों का पैसा डूब गया, कोई भी गरीब आदमी शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करता है, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा सिस्टम अपने देश में डेवलप किया है मोदी सरकार ने। और वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो एक्सपर्ट जो मार्केट ये रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं, उनके थ्रू उनका ट्रेडिंग होता है। तो उन्होंने लॉस करने का कोई भी दूर दूर से भी कोई शंका So मुझे you're rejecting Congress charge that Prime Minister Modi, Finance Minister and Home Minister has not tipped the market and moved the market. 100% आई एम रिजेक्टिंग। इसलिए मैंने पहली बात बोली कि 3 मिनट में कोई भी आरोप लगा के भाग जाना, जिस आदमी को मार्केट का जीरो नॉलेज है उसने ऐसा आरोप करना ये सरासर गलत है। अभी उनको जो एक यूफोरिया आया है थोड़ा बहुत उनके सीट बढ़ने से, वो यूफोरिया में वो ऐसी हरकतें बचकाना हरकतें करते रहेंगे। लेकिन विनायक अंबेकर साहब, 2G स्कैम की जो आपने बात करी उसमें जितने भी अक्यूज थे वो तो बाहर हैं। इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया था। हाई कोर्ट के अंदर अभी तक अपील पेंडिंग है और उस केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल हो गए हैं सर, सब लोग बाहर हैं, एक भी आदमी अंदर नहीं है। आपको यदि 2G स्कैम पे चर्चा करनी है जी। तो ये बात समझ के लीजिए कि 2G स्कैम का जो आरोप था वो सिस्टम में करप्शन लाने का था। सिस्टम में जी। करप्शन कैसा हो गया तो आपने पढ़ा ही रहेगा, आप तो पत्रकार जी, हैं। मालूम है सर, मालूम मुझे है। जो थोड़ा सा नॉलेज है वो ऐसा हुआ था कि एक कट ऑफ टाइम रखा गया था और वो कट ऑफ टाइम प्रीपोन किया था जी। और वो प्रीपोन करने के साथ किसी विशिष्ट और कंपनी कंडीशंस चेंज किए गए थे, करेक्ट है। और वो जो सिस्टम मैनिपुलेशन था दैट वाज कॉल्ड फ्रॉड, नॉट द अमाउंट, क्योंकि वो सिस्टम फ्रॉड करके उन्होंने जो तो कंपटीशन 1,73,000 करोड़ का जो फिगर आया, जो हर जगह पे, मुझे अभी तक याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बड़ी जबरदस्त स्पीच भी दी थी उसको लेकर के। तो पूछना तो ये चाहिए भाई वो 1,73,000 करोड़ का क्या हुआ, वो वापस आए कि नहीं आए, मतलब पूछना चाहिए ना सर ये विनायक अंबेकर साहब। हाँ तो पूछ रहे हैं ना, हम वहां से उस टाइम से पूछ रहे हैं, हम जी। किधर नहीं पूछ रहे। But only thing I'm disappointed about is that the appeal is still pending in the High Court और अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। और ये सब लोग घूम रहे हैं, दोबारा चुनाव लड़ करके दोबारा वापस पार्लियामेंट में बैठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे। और जितने भी बाकी लोग थे, मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो कॉर्पोरेट्स थे बड़े बड़े, उनके खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं, खुद के प्राइवेट प्लेन्स हैं, इत्मीनान से सर मजे कर रहे हैं सब लोग। मैं आपको बोल रहा हूं सर विनायक अंबेकर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये 3rd टर्म में आई थिंक दिस केस शुड बी रिवाइव्ड एंड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट एंड ऑल दोज पीपल हु हैव बीन गिल्टी शुड बी इन जेल। भले रिकवरी होती है नहीं होती वो अलग बात है, मुझको ऐसा लगता है सर। लेकिन फिलहाल चलिए ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है। नींद वाला स्कीम जो हम लोग वन सेकंड दूसरी चीज सर है आप जो बात उठा रहे हैं जी, वो बात जुडिशियल सिस्टम के डिफेक्ट्स की बात है। आपको मालूम रहेगा कि पूरी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 16 जजेस है और वो इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की जो
शिकायतें हैं सर अब उसको तो डील 150 करोड़ क्रॉस कर लिया सर, अभी तक हम 140 करोड़ पे कहाँ पे हैं? हरकत नहीं, जो भी फिगर रहेगा तो यानी आप तो प्रॉब्लम को समझ लो। I प्रॉब्लम agree, sir. ये है I कि agree. There is nothing to debate over there. I agree. But at some point of time, we'll have to expand the Supreme Court, get more judges in the high courts, get more judges at the lower courts. That is the most important point. लेकिन सर यहाँ पे the Prime Minister said something very significant. I don't know, आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा के ऊपर लाए हम लोग पिछले 10 साल में। अब उनका फोकस ये है कि भारत में गरीबी को हमें अलविदा करना है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मिस्टर मोदी टू गो अबाउट इट, बिकॉज दैट आई थिंक विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोदी 3.0 कि अब पॉवर्टी लाइन से कितने और लोगों को हम ऊपर ला पाएंगे। विनायक अंबेकर साहब बताएं। सर, मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है या कार्य पद्धति है वो एम्पावरमेंट का कार्य पद्धति है जी। और अभी इस इलेक्शन में आपने देखा रहेगा कि एंटाइटलमेंट के पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का अपोजिशन पार्टीज ने ये प्रयास किया। अभी उन्होंने क्या बोला कि आप यदि गरीब महिला है तो आपके खाते में हर महीना 8,500 रुपया खटाखट आ जाएगा। जी। तो ये जो है ये एंटाइटलमेंट है। क्या आपकी यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे वाली महिला को साथ देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो 100% देना चाहिए। तो वो कैसे देना चाहिए? तो उनको एम्पावर करके वो खुद 8,500 रुपया कई दिन में कमाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जो मोदी जी ने लखपति दीदी नाम के उनके प्रोग्राम के थ्रू की थी। ये लखपति दीदी को उनका व्यवसाय चलाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता था और उसकी जो महीने की इनकम है उसमें बढ़ावा हो इसकी व्यवस्था की जाती थी। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। तो ये जो सब विरोधी पक्ष है तो वो सत्ता के लिए इतने हावी हो गए, इतने भूखे हो गए कि कुछ भी प्रोमिसेस करते रहते हैं और इसलिए माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया। तो मोदी जी यदि फुल पावर में आते थे तो जितने स्पीड से ये काम कर सकते थे उस स्पीड में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता सर मुझे नहीं, आई डिसएग्री विद यू, मुझे नहीं लगता। आई थिंक एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। दे हैव एम्पावर्ड मिस्टर मोदी टू डू व्हाटएवर ही वांट्स, लेट्स बी वेरी क्लियर। मतलब और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी उस किस्म की शख्सियत हैं। मैं उनको 2002 से जानता हूं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज करेंगे जरा भी किसी भी तरीके से। इनफैक्ट ही विल प्रेफर टू सिट इन द ऑपोजिशन। अगर ऐसा कुछ हो गया, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ गया कहीं से, he is likely to sit in the opposite कि भैया आप लोग चलाओ। Let me tell you very frankly, I don't know what you think about it. No, he's talking about progress. Prime Minister Modi ने कहा कि progress is the only thing. We are known for governance. NDA 1, NDA 2 and NDA 3 Yes. will be total governance. Absolutely. And absolutely providing swiftly moving towards progress and development. And he talked about big roadways, improvement of roadways, improvement in space technology, improvement in waterways, Pradeep ji, don't forget information technology. And don't forget huge everything. Huge defense projects. Bilkul. They are also coming. He said there's going to be quantum jump. This is 10 साल. That's what Prime Minister Modi. Can you elaborate on that, Vinayak Ambekar साहब? सर, मैं जो रेफरेंस दे रहा था वो मोदी जी के डायरेक्शन के बारे में नहीं दे रहा था, लोगों के परसेप्शन के बारे में दे रहा था। जी बोलिए। वो उनका डायरेक्शन है एम्पावरमेंट का, वो तो मोदी जी कभी भी छोड़ेंगे नहीं। एंटाइटलमेंट के लिए वो पूरे विरुद्ध है, इसलिए तो उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात उठाई थी और वो कायम रहेगा उनके दिमाग में और वो ही उसी रास्ते पे चलेंगे। इतना ही है कि अभी थोड़ा सा कोएलिशन पॉलिटिक्स में एकादे स्कीम के बारे में कुछ उनके रूल्स रहेंगे, उसमें थोड़ा ढीलापन देना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना और वो अच्छा भी है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फैमिली इन दी आर्म्ड फोर्सेस। वो सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं अग्निपथ स्कीम से। अच्छी होगी स्कीम बट दे आर वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि क्या है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, लोगों की हालत खराब है वगैरह वगैरह। और जैसे गोरखा रेजिमेंट है, वी हैव 6 गोरखा रेजिमेंट्स, सर वी नीड 30,000 ट्रूप्स इमीडिएटली, नहीं हो रहे रिक्रूट। तो उसके बारे में रीथिंक होनी ही पड़ेगी। और जैसा कि मोदी जी ने पहले भी दिखाया, जो फार्म लॉस थे 3 फार्म लॉस, उनको विड्रॉ किया ना, विड्रॉ किया। भाई कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाया, हम लोगों को नहीं समझा पाए, तो ही हैज शोन फ्लेक्सिबिलिटी अर्लियर। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अड़ गए हैं कि बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट ओनली थिंग विच ही होप फॉर, and I would like to ask you this,
ही सेड कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार विकास के इश्यूज पे, डेवलपमेंट के इश्यूज पे ऑपोजिशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट करेगी, विच हैज बिन मिसिंग अप टिल नाउ, क्योंकि देयर वाज नो डिबेट, देयर वाज ओनली डिसरप्शन। आपको लगता है ऐसा होगा सर? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैंने जो यूफोरिया की बात की थी तो उनको किसी भी देश के विकास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये वंशवादी पार्टियां इकट्ठा आई है, उनको उनके खुद के विकास में इंटरेस्ट है। और यदि वो प्रो डेवलपमेंट होते थे तो इतने गलत तरीके के आरोप वो पहले नहीं करते थे। तो उल्टा उनके इसमें उनका संख्या बढ़ने के कारण थोड़ा सा डिसरप्शन बढ़ेगा, मगर मोदी जी उस डिसरप्शन की चिंता करेंगे ऐसा मुझे अंबेडकर साहब, मगर नीट स्कैम एक स्कैम ही है। अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड दैट कॉस्ट यू हेवीली। उत्तर प्रदेश में आपका परफॉर्मेंस इसलिए भी धक्का पहुंचा बिकॉज वो पेपर लीक्स वाले एम्प्लॉयमेंट 12 बार हुए। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ अगेन ये हरियाणा में स्कैम चल रहा है कि नीट स्कैम में से 67 हरियाणा के बच्चों को फुल मार्क्स मिला 720, और करीबन 130 हरियाणा के बच्चे को 719 मार्क्स। तो बाकी लोग पूरे देश में जाएंगे कहां पर? आई मीन यू क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस आउट देयर कि एक ही स्टेट के इतने सारे लोग फुल मार्क्स ले रहे हैं एंड लेस देन फुल मार्क्स वन। तो ये क्या इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? इफ बिकॉज इफ यू डोंट ऑर्डर इंक्वायरी इट विल बी मोटिवेटेड सब बोलने के लिए कि यू आर इन्वॉल्व इन दैट। बच्चों का फ्यूचर भी है ना इसमें। हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, होती है, होती रहेगी। मोदी जी किसी भी टाइप के करप्शन को कभी भी नींद में भी कभी भी उसको सहारा नहीं देने वाले। वो तो बहुत कठोर है हर टाइप के करप्शन के अगेंस्ट। तो ऐसे चीजों पर इंक्वायरी होनी ही चाहिए, ऐसा उनका कहना है, और वो होती रहेगी। और ये कैसा है कि जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और जो इसीलिए ये करप्शन होते हैं। तो इसको इसीलिए तो उन्होंने ऑल इंडिया सिंगल टेस्ट की बात की थी, मगर फिर उसमें लैंग्वेज पॉलिटिक्स आ जाता है, कास्ट पॉलिटिक्स आ जाता है, तरह तरह की पॉलिटिक्स आते हैं। जैसा आपने नीट के टाइम में देखा था कि एक सीमलेस सिस्टम तैयार होना और वो भी ऑनलाइन रहना, ये बहुत जरूरी है, और मोदी जी उस विषय में काम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। विनायक अंबेडकर साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, ये अयोध्या का रिजल्ट जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है सर, वेरी फ्रेंकली। अयोध्या में मंदिर बना, राम मंदिर बना, 500 साल के बाद आत्मसम्मान भारत का वापस आया, और अयोध्या में मंदिर वाला जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी बीजेपी की जो आदरणीय लल्लू सिंह साहब हैं वो हार गए। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर, आप जरा बताएं प्लीज। सर, एक तो उनका मार्जिन जो है हारने का वो खाली 55,000 वोटों का है, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि जिस आदमी के दुकान को कोई थोड़ा पीछे हटाया गया हो, जिस आदमी का दुकान उधर से हटाया गया हो, कोई रोड बड़ा करने के लिए, कोई चौक बड़ा करने के लिए, वो तो नाराज रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम रहते हैं कि ये मैंने मेरे देश के लिए किया है, ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। और दूसरी एक बात है, शायद प्रशासन की तरफ से उधर के स्थानिकों को रोजगार देने में कुछ कमी आई रहेगी, क्योंकि जो ओपिनियन आ रहे ग्राउंड लेवल से, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि हमारा क्या, तुमने दुनिया के लिए अच्छा राम मंदिर बनाया, मगर हमारे लिए उसका तकलीफ हुआ, हमारा इनकम बढ़ा नहीं उसके वजह से, ऐसा उनका कहना है। तो उनके जो लोकल्स के जो रोजगार है उसको उनको रोजगार मिले और उनके भी लाइफ अच्छी हो, ये काम करने की जरूरत है। और एक और भी चीज थी विनायक अंबेडकर साहब, मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सेड दिस, कि लोग जो हैं बड़े नाराज थे उधर कि भाई देखिए आप बाहर के लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोगों का क्या, राम तो हमारे भी है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम राम की कृपा से वंचित क्यों रहे, नंबर एक। नंबर दो, ये भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अयोध्या में और बाकी हर जगह पे जो टेंट सिटी बना, जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है, जो रोड्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बाकी सब हैं, वो सारे लोग गुजरात के हैं, ऐसा कहा गया। तो और ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं, अमित शाह जी भी गुजरात से आते हैं, तो टारगेट बहुत आसान हो गया। नंबर एक, क्या इस बात में कोई सच है कि वास्तविकता में सारे कॉन्ट्रैक्ट या सारे ठेके जो है वो गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए, या और अगर सच नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी से कहां पर गलती हुई इस भ्रम को मिटाने में?
अंबिकर साहब? ये भ्रम ही है। आप देखिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, समझो 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बिडिंग की पावर किसको मिलती है? जिसने पहले 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको मिलती है। अभी गुजरात में कई सालों से डेवलपमेंट चलती आई है। जैसा उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला का सिटी बनाया, वैसा कावड़िया में, वैसा उधर कॉन्ट्रैक्ट करने का अनुभव गुजराती कंपनी को हो सकता है। तो वो बिड में वो क्वालिफाई होंगे। गुजरात के कोई भी सॉरी उत्तर प्रदेश की कोई भी कंपनी समझो क्वालिफाइड नहीं रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट उनको ही जाना, क्योंकि वो ऑनलाइन है। मगर ये बात समझाना चाहिए लोगों को कि गुजरात से मजदूर आते नहीं है, मजदूर तो स्थानिक रहते हैं। और जो उनके सप्लायर है, जैसा सीमेंट सप्लायर है, जी। वीट सप्लायर है, वालू सप्लायर है, वो सब स्थानिक है, उनको रोजगार मिला है। उनके थ्रू इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिला है। समझो गुजरात का कॉन्ट्रैक्टर आके अयोध्या में ठहरा है, तो वो खाना तो अयोध्या के आदमी से ही खा रहा है ना, उसके होटल में जाके खा रहा है। तो ये सब चीजें समझाने में शायद भाजपा के बट यू नो अंबेडकर साहब, यू लॉस्ट दिग्गज मंत्री हारे आप, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, अजय मिश्रा, राजीव चंद्रशेखर, ये तो टॉप लेवल पे। बट महाराष्ट्र में यू नो पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, कपिल पाटिल, यू नो ह्यूज लॉसेस। कांग्रेस इसी पे कर रहे कि आपके दिग्गज नेता शहीद हो गए। नाउ यू गॉट इंट्रोस्पेक्शन टू डू। फडणवीस जी ने इस्तीफा देने का पेशकश किया है, कहां 23 से 9 तक आना। It's not only a defeat, it's what you call total whitewash, यानी destruction, total destruction of the entire BJP forces. अंबेडकर साहब, ऐसा तो मैं मानता नहीं बिल्कुल भी। देखो, ये इलेक्शन जब से शुरू हुआ तो इसका कंपैरिजन 2004 के इलेक्शन से किया जा रहा था कि भाजपा उसी समय शाइनिंग इंडिया का नारा लगा के वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लिया था, ऐसा बोल रहे थे लोग। और इस टाइम में भी वैसा ही होगा, ऐसा कांग्रेस को आत्मविश्वास था। तो आप देखेंगे तो भाजपा का जो मताधिकार है, जो 36% के आसपास है, उसमें खाली 1.43% का डिफरेंस हुआ है। मगर जो 32 सीट से भाजपा बहुमत से दूर है, वो 32 सीट इतने कम मार्जिन में हम हारे हैं कि उसकी टोटल की जाए तो सिर्फ 6,09,000 वोट्स की जरूरत थी, तो हम 32 सीट ला सकते थे और 272 के आगे जा सकते थे। तो कोई भी इलेक्शन में ये बात आप समझ के लीजिए कि इस टाइम में सब अपोजिशन, खास करके यूपी में कांग्रेस और सपा इकट्ठा आए थे और मायावती साइलेंट हो गई थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ था उससे उनका जो मत था वो इकट्ठा हो गया और भाजपा का मत रखने में, उतना ही रखने में सक्सेस मिला। मगर जो हमारी प्रयत्न था कि हम सब अपोजिशन इकट्ठा आ रहे, यानी 50% लोग सामने जा रहे, तो हमको जितना रहेगा तो हम 50% का टैली करना चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा 14 सीट गए पर महाराष्ट्र में बीजेपी हारे हैं अंबेडकर साहब। 14 सीट्स आउट ऑफ 32 जो आप बोल रहे हैं, 14 यहीं से। महाराष्ट्र में बहुत भरोसा था, महाराष्ट्र ने धोखा दिया। महाराष्ट्र में भरोसा नहीं था, महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटीज अलग है। इसकी समझ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पहले से आई थी, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में ये जो ट्राई किया कि शिंदे साहब को लिया, पवार साहब को लिया, ये सब उसी व्यूह रचना का भाग था, क्योंकि उनको समझ में आया था। वो समझ में कहाँ से आया वो भी मैं आपको बोलता हूँ। पूना में कस्बा विधानसभा मतदार संघ का जो इलेक्शन हुआ था, पोट निवडणूक था वो, उस इलेक्शन में सभी विरोधी पक्ष इकट्ठा आए थे और भाजपा ने खुद के वोट बैंक में प्रगति करके भी भाजपा हारा था। तो उसी समय ये सब बात समझ में आई थी और उसी के ऊपर सब करेक्टिव एक्शन किया था, मगर उतना सक्सेस नहीं मिला। देखिए, मैं महाराष्ट्र में की बात करता हूँ, यहाँ भी 26% हमारा जनाधार है, वो आज भी कायम है। मगर उनके जो जनाधार है उसमें भी कोई ज़्यादा बढ़त नहीं है। मगर वो 3 पार्टी इकट्ठा आ गई। पहले 50-50 थे हम, उबाटा शिवसेना के साथ, पूरी शिवसेना हमारे साथ थी, तो हम 50% है, वो 50% है। विधानसभा के लिए आपको बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी सर। 100% करनी पड़ेगी, पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा जी। ये जो हमको एडिशनल वोट चाहिए, तो वो वोट के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। वो तो सब पार्टी के नेतृत्व ने मान्य किया, उस दिशा से काम भी चालू हुआ। सर, सबसे बड़ा इसमें इशू एक है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है,
लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, रोड वाइडनिंग में किसी का घर टूट गया, कोई मंदिर टूट गया, कोई ये हो गया वो हो गया, वो अलग बात है। सर सबसे बड़ा इशू था महंगाई। जो गैस सिलेंडर की प्राइस है, अगर आप उसको 450-500 पर ले आते, सब्सिडी दे आते, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी 300 सीटें कहीं नहीं गई थी। भले आप माने या ना माने, भले आप उसको रेवड़ी कहें, आप उसको मूंगफली कहें, सेंगदाना कहें, मिश्री कहें, मिठाई कहें, सीधी बात है सर। अगर आज एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइस अगर आप आज भी 1100 से आप 450-500 पर ले आते हैं, कोई नहीं रोक सकता सर। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। क्या बोलेंगे सर इस पे आप, विनय कम्बेकर साहब? 100% इतना सिंपल नहीं है। चलिए। हर इलेक्शन का जो रिजल्ट लगता है वो इट्स ए मतलब आप वैसा बोलते हैं वैसा उस दिशा में हमने गरीब तबके को 34 कोटि लाभार्थी है हमारे, उन लोगों को हमने क्या नहीं दिया है, बहुत सब कुछ दिया है, मगर खाली उनको कोई सप्लाई किया या कुछ किया वैसे भी आप बोलते हैं तो आपको पंजाब में यश क्यों नहीं मिला? उन्होंने बिजली फ्री दी, ये फ्री दी, फिर भी उनके 50% कम क्यों हो गए? तो इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है वो कि आप गैस सस्ता करो और जीत जाओ। उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स कंट्री। उसके जो वोटर्स है उनको समझने का एक अलग से तरीका है जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व को मालूम है। खाली इतना ही हो गया कि थोड़ा सा इस टाइम में यूपी में शायद और कॉन्फिडेंस हो गया रहेगा, ऐसा अभी लोगों को लगता है। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तीनों जगह। महाराष्ट्र में हम कभी भी और कॉन्फिडेंट नहीं थे सर। Right, thank you so much, sir, and congratulations once again for a government for the third consecutive time after Pandit Jawaharlal Nehru. So Yes, Modi after ji, 62 years there is yes, Modi ji equals Pandit ji's record. Yes sir. नमस्कार सर, भारत माता की जय, जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू।